Hello students, welcome to our channel Chaitanya Bharati Integrated Academy. So today we are going to discuss a chapter called Foreign Exchange Rate from class 12 Economics. This chapter is from Macroeconomics, okay? So first let's discuss what is foreign exchange. So for Indians, foreign exchange means all the currencies except the Indian currency, that is rupees. ओके सो जो भी करेंसीज है पूरे वर्ल्ड में यूएस डॉलर पाउंड जितने भी करेंसीज है एक्सेप्ट इंडिया फॉर इंडियन पीपल वी विल कॉल इट एज फॉरेन एक्सचेंज. ओके क्लियर. So as you can see from the screen that foreign exchange refers to the reserve of foreign currencies like currency of US dollar and UK pound are the foreign exchange for Indians. Okay, so foreign exchange rate, I hope it's clear. Then let's come to foreign exchange rate. This was foreign exchange and let's come to the rate. So what is foreign exchange rate? It refers to the rate at which 1 unit of domestic currency is exchanged for how many numbers of the foreign currency. For example, let's say $1 is equal to, now it's around 81. So $1 is equal to suppose 81 rupees. So this is called foreign exchange rate. When one currency is exchanged for the other currency, this is called foreign exchange rate. So I hope it's clear what is foreign exchange rate. As you can see from the screen, I have given one example. Like for example, rupees 60 are to be paid to buy $1. अगर हम 60 rupees पे कर रहे हैं $1 के लिए, then that is called the foreign exchange rate. But now what is the foreign exchange rate? It's around $1 is equal to rupees 81 point something. Now let's come to the types of foreign exchange rate. We have three types of foreign exchange rate. We have fixed exchange rate system, flexible exchange rate system and managed floating exchange rate system. So let's discuss these exchange rate system one by one. So as you can see, every government has to make a decision as to how we can maintain or what type of exchange rate it wants to adopt, because every country needs to maintain the exchange rate to adjust the BOP difficulties. So let's discuss first fixed exchange rate system. So as the name suggests, fixed exchange rate system is that exchange rate system which is fixed by the government or the central authority of a country. So fixed exchange rate system is referred to as exchange rate system where exchange rate is fixed by the government or any monetary authority. For example, in India it is RBI, Reserve Bank of India. So it is not determined by the demand forces like demand for exchange rate and supply of foreign exchanges. It is not decided by market forces. So we need to, for this fixed exchange rate system, we need to maintain foreign exchange reserves. We should have enough foreign exchange rate reserve. Okay. So now how this fixed exchange rate system is fixed? So let's see. Rate is fixed in terms of external standard. So the first is called parity value of currency. That is when the exchange rate is fixed in terms of the value of the gold. Okay. Value of the gold, like according to this system, gold was taken as the common unit of parity between currencies of different countries in circulation. Each country was to define the value of its currency in terms of gold. So accordingly, the value of one currency in terms of the other currency was fixed considering the gold value of the currency. That means we have to fix the exchange rate in terms of gold, in terms of the currency value of the gold. Okay. So this is called parity value of the currency. So next is any other currency, which is called pegging. So when the exchange rate is fixed with any other currency, that is also called Bretton Woods system of exchange rate. So here the exchange rate is fixed in terms of US dollar. Okay. So this is the currency of US. Now International Monetary Fund, which is called IMF, is delegated or was delegated with the supervisory role under this system. So a fixed exchange rate system is an exchange rate that does not fluctuate, much or that changes within a predetermined rate at infrequent intervals. That means ये ज़्यादा change नहीं होता है, government इसको decide करता है और ये जैसे कि हम फ्लेक्सिबल में देखेंगे, फ्लेक्सिबल में क्या होता है, एक्सचेंज रेट
फ्लक्चुएट होते रहता है, बट इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता. Then government or the central monetary authority intervenes in the foreign exchange market so that exchange rates are kept fixed at a stable rate. इसमें ज़्यादा कुछ changes नहीं आना चाहिए. So government या फिर monetary authority वो intervenes करता है और regularly उसको monitor करता है. Next, the rate at which the currency is fixed is called द पार वैल्यू. जो रेट में वो फिक्स होता है उसे पार वैल्यू कहते हैं. और एंड दिस पार वैल्यू इज अलाउड टू मूव विद इन अ रेंज +-1 एंड दिस इज कॉल्ड बैंड. ओके, +-1% के अंदर ये चेंज हो सकता है दिस पार वैल्यू. ओके, सो द ओवरऑल थिंग इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. आप बस इतना समझिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां गवर्नमेंट या फिर जो हमारा सेंट्रल अथॉरिटी है, मॉनिटरी अथॉरिटी, वो डिसाइड करता है क्या होना चाहिए उसका एक्सचेंज रेट. और ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, जैसे कि हम फ्लेक्सिबल में देखेंगे, ये फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होता. Then let's come to the what are the merits of fixed exchange rate. ज़रूर इसका कुछ merits होगा, demerits होगा. So पहला merit ये है कि ये exchange rate stable होता है, इसमें ज़्यादा changes नहीं आते हैं. So due to certainty it promotes foreign trade. तो क्योंकि ये fixed होता है तो foreign trade promote करता है, foreign trade में ये help करता है. Then it prevents capital outflow. Capital outflow वो ये prevent करता है, रोकता है. Then it helps the government to check inflation. इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज जनरल प्राइस राइज. ओके, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ओवरऑल गुड इन द इकोनॉमी. सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये चेक कर सकता है इन्फ्लेशन. नाउ लेट्स कम टू द डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सबसे पहला है इट रिक्वायर्स हाई रिजर्व्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा होना पड़ेगा, एंड गोल्ड का रिजर्व जब ज़्यादा होता है, आई मीन it hinders the movement of the capital or foreign exchange. hinder मतलब ये रोकता है. Then next demerit is it will discourage the objective of having free market. जो free market का objective है उसको ये discourage करता है. Then it may result in undervaluation or overvaluation of currency. Undervaluation और overvaluation of currency हो सकता है. Let's now discuss what is overvaluation of currency and undervaluation of currency one by one. So first is overvaluation of currency, which means that a situation in which the exchange rate of a currency exceeds what the open market is willing to pay. Open market में जो pay करना चाहते हैं उससे ये exceed हो रहा है. ठीक है, so this is called overvaluation of currency. Currency का जो value देना चाहता है open market में उससे ये exceed हो रहा है, उससे ये ज़्यादा हो रहा है. So this is called overvaluation of currency. Next है अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी. इसका मतलब ये होता है कि ओपन मार्केट में जो इसका प्राइस देना चाहता है एक्सचेंज मार्केट में उससे ये कम है. सो दिस इज व्हाट अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, विच मीन्स अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ करेंसी इज लोअर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द एक्सचेंज मार्केट. एक्सचेंज मार्केट में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे करेंसी का वैल्यू कम होता है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Now let's come to the flexible exchange rate system, which is also called floating exchange rate system. So flexible नाम से ही पता चल रहा है ये flexible है, that means ये fluctuate होता है. It is that rate which is determined by the demand for and supply of different currencies in the foreign exchange market. Flexible exchange rates can be defined as exchange rates determined by global supply and demand of currency. मतलब डिमांड कितना है करेंसी का और सप्लाई कितना है करेंसी का, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. जैसे आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ का जब सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है. उसी तरीके से करेंसी का डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स कम टू मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. So there is no need for government to hold any reserve, क्योंकि ये flexible है तो ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है. It eliminates the problem of undervaluation and overvaluation. अभी हमने देखा कि undervaluation किसे कहा जाता है, overvaluation of currency किसे कहा जाता है. तो यहाँ वो problem नहीं होता, लेकिन fixed में होता है. So यहाँ ये problem नहीं होता. Next, let's come to demerits of flexible exchange rate system. It creates a situation of market instability.
जहाँ फ्लक्चुएशन होता है मार्केट स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ उतार चढ़ाव होते रहते हैं. ओके. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज डिस्करेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय करेंसी फ्लक्चुएशंस. इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई डरता है, कोई इन्वेस्टर डर सकता है अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, किसी कंट्री का अगर एक्सचेंज करेंसी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है या एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. तो इससे क्या होता है, वो डिस्करेज्ड हो जाते हैं. तो देयर इज़ नॉट स्टेबिलिटी, देयर इज़ इनस्टेबिलिटी एंड इट एनकरेजेस स्पेक्यूलेशन. नाउ स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में इसका अगर सपोज करेंसी एक्सचेंज रेट कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे. ओके. सो दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्यूलेशन. वो स्पेक्यूलेट, वो सोचते हैं कि हाँ फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है या फ्यूचर में इसका प्राइस कम होने वाला है. सो उसके मुताबिक वो इन्वेस्ट करते हैं. ओके. इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो ये क्या है, ये मिक्सचर है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का. ठीक है, मिक्सचर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का भी और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का भी. यहाँ क्या होता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं एक्सचेंज रेट, और अगर ज़्यादा उसमें एक्सचेंज रेट में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा इनस्टेबल, वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, देन सेंट्रल बैंक या फिर जो गवर्नमेंट है दे विल इंटरवेन. ओके. It is a mixture of a flexible exchange rate system, the float part, and a fixed exchange rate system, the managed part, wherein exchange rate is determined in the foreign exchange market freely by the market forces of demand and market. However, excessive fluctuation is checked by central bank. मतलब अगर हद से ज़्यादा fluctuation हो रहा है exchange rate में, जैसे $1 is equal to, for example, अभी जैसे 81 point something हो गया है रुपीज़, तब क्या होता है, अगर हद से ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगा. ओके. मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता है. ओके. क्यों बोला जाता है, क्योंकि इफ अ कंट्री मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट बाय नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द अथॉरिटी, बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी. आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. Now let's come to the advantages of floating exchange rate or dirty floating exchange rate. First is automatic stabilization. Any disequilibrium in the BOP would be automatically corrected by a change in the exchange rate. For example, if a country suffers from a deficit in the balance of payment, then other things being equal, the country's currency should depreciate. ठीक है, ये बीओपी में अगर कुछ डेफिशिएंसी हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो ये कौन करता है, ये मैनेज फ्लोटिंग के अंदर ये ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है. दिस वुड मेक द कंट्रीज एक्सपोर्ट चीपर. ऑफकोर्स अगर हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएगा. ओके. द पीपल विल, द फॉरेनर्स विल इम्पोर्ट फ्रॉम आवर कंट्री, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएगा. Thus, increasing the demand while at the same time making imports expensive and decreasing demand. और हमारे लिए जब हमारा करेंसी का depreciation होता है तो हमारे लिए imports expensive हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है for the same amount of for the same good, हमें ज़्यादा पे करना होगा. ठीक है. The balance of payment equilibrium would therefore be restored. On the contrary, a balance of payment surplus would be automatically eliminated through the change in the exchange rate. अगर surplus हो रहा है तो appreciation हो जाएगा. Okay. Now management. So governments are free to manipulate the external value of their currency to their own advantage. यहाँ manage किया जा सकता है. फ्री मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट, और अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो गवर्नमेंट कैन मैनेज एटलीस्ट. ओके. Now lower reserves. Floating exchange rate should mean that there is hardly any need to maintain large reserves to develop the economy. These reserves can therefore be fruitfully used to import capital goods and other items in order to promote faster economic growth. तो यहाँ बोला गया है manage floating exchange rate में ज़्यादा reserves का ज़रूरत नहीं है. ओके. सो जो reserves है हम कुछ यूज़फुल काम के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम कैपिटल अगर हमें इंपोर्ट करना है जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वी कैन इंपोर्ट दैट. ओके. सो आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर. नेक्स्ट,
का एडवांटेज अवॉइडिंग इन्फ्लेशन। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम एक कंट्री को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं क्योंकि वहाँ सेंट्रल जो बैंक होता है वो इंटरवेन करता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अनसर्टेनिटी होता है, ऑफ कोर्स द वेरी फैक्ट दैट करेंसीज चेंज इन वैल्यू फ्रॉम डे टू डे इंट्रोड्यूसेस अ large element of uncertainty into trade. A sailor may not be quite sure of how much money he will receive when he sells goods abroad. Some of this uncertainty may be reduced by companies buying currency ahead in forward exchange contracts. Forward exchange market होता है, we will come to that also. यहाँ बोला गया है अनसर्टेनिटी होता है क्योंकि सर्टेन नहीं है कि कितना होने वाला है, फ्लक्चुएट हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो इसके वजह से जो सेलर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो अनसर्टेन होता है कि हमें ख़रीदना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए या नहीं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। देन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स वहाँ अनसर्टेनिटी होता है तो जो MNC से इन्वेस्टमेंट का चांसेस है उसमें भी अनसर्टेनिटी होता है। देन स्पेक्यूलेशन, डे टू डे फ्लक्चुएशंस के वजह से स्पेक्यूलेशन होता है, स्पेक्यूलेशन ऑफ हॉट मनी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री देयर बाय कॉजेज मोर एंड मोरिंग एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। क्योंकि एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो जो भी हॉट मनी होता है, जो भी कंट्री में हॉट मनी होता है, उससे क्या होता है, ये स्पेक्यूलेशन करना पड़ता है। ओके, जैसे US डॉलर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करके किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उनको देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स कम टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट्स है, जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगा, करेंसी एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। सो लेट्स डिस्कस दीज concepts one by one. Currency depreciation. Currency depreciation का मतलब क्या होता है? जब हमारा करेंसी एज कम्पेयर टू द सपोज US डॉलर डेप्रिशिएट, उसका वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, पहले अर्लियर सपोज इट वाज $1 इज इक्वल टू ₹60, क्योंकि अभी डेप्रिशिएट हो गया है, दिस विल बिकम $1 इज इक्वल टू रुपीज से फॉर एग्जाम्पल 70। मतलब हमें अभी ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर द सेम डॉलर, हमें ज़्यादा पे करना होगा फॉर द सेम $1. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो इफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गया है, द एक्सचेंज रेट विल राइज। दिस राइज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी और करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दिया है, सपोज रुपीज डॉलर एक्सचेंज रेट इज 60, मीन्स ₹60 नीड्स टू बी पेड इन ऑर्डर टू गेट $1। सपोज पहले हमें $60 मिलता था लेकिन डेप्रिसिएशन होने के बाद अभी हमें सेम $1 के लिए हमें ₹70 पे करना पड़ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, उसका वैल्यू depreciate हो गया। So this is called currency depreciation. So let's see what are the effects of depreciation of domestic currency on exports. अगर हमारा करेंसी का वैल्यू कम हो गया है, मतलब ध्यान से समझिए, हमें अभी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है $1 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप खुद को फॉरेनर्स सोचिए, आप खुद को फॉरेनर सोचिए और उनके तरफ से देखिए, आपके लिए ये सस्ता हो जाएगा। मतलब फॉर द फॉरेनर्स द इम्पोर्ट्स विल बिकम चीपर फॉर देम, बट हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ये महंगा हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, that is rupee, in terms of foreign currency, that is dollar. It means with the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. Exports to USA will increase as they will become relatively cheaper. मतलब USA क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा, मतलब हमारे से इंडिया से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनके लिए इम्पोर्ट्स विल बिकम चीपर। ओके, नाउ एक इफेक्ट है इम्प्रूव्स एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, क्योंकि अभी फॉरेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे हमारे इंडिया से, हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होगा। ओके, सो अगर BOP में कुछ भी डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो हम
इससे क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट. ओके, वी कैन improve this situation. Next is may lead to pulling of foreign investment. An abrupt and sizable currency depreciation may scare foreign investors who fear the currency may fall further, leading them to pull portfolio investment out of the country. अगर किसी ने हमारे इंडिया में सपोज इन्वेस्ट किया है, ओके, सो इन्वेस्ट करने से क्या होगा, अगर हमारा करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. और इन दैट केस वो क्या करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, सारा अपना मनी हमारे इंडिया से ले जाएंगे और दूसरे कई कंट्री में जहां उनको प्रॉफिट मिलता है वहां इन्वेस्ट करेंगे. सो इससे क्या होगा, ये एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया, तो ये हमारे लिए बुरा है. ओके, सो लेट्स नेक्स्ट सी द करेंसी एप्रिसिएशन. करेंसी एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब हमारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ जाना. ओके, जब एप्रिसिएशन होना मतलब करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो जाना. जैसे फॉर एग्जांपल, पहले सपोज $1 इज इक्वल टू ₹60 था. ओके, अभी क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अभी हो गया आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी $1 विल बिकम सपोज 55. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डोमेस्टिक करेंसी अभी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है. ओके, उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है. क्यों? क्योंकि देखो, पहले हमें $1 के लिए 60 रुपीज़ पे करना पड़ता था, लेकिन आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अभी हमें सेम $1 के लिए 55 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, कम पे करना पड़ रहा है. तो ये हमारे लिए अच्छी बात है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Currency appreciation refers to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. The domestic currency will become more valuable and less of it is required to buy the foreign currency. ठीक है, मतलब कम अभी चाहिए हमें रुपी फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए, अगर हम पहले से कंपेयर करेंगे तो. Now Indian rupee appreciates when price of dollar falls. जब डॉलर का प्राइस फॉल होता है, इंडिया का रुपी जो है वो एप्रिशिएट होता है. एप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू इंक्रीज होना, करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होना. ओके, नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट्स में क्या इफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट्स में क्या इफेक्ट होगा, लेट्स सी दैट. Appreciation of domestic currency means a rise in the price of domestic currency, say rupee in terms of a foreign currency. Now 1 rupee can be exchanged for more dollar. Okay, with the same amount of money more goods can be purchased from USA. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए अभी imports cheap हो गया है. Okay, हमारे लिए imports cheap हो गया है. ऑल राइट. और अगर हम फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए इंपोर्ट्स कॉस्टली हो गया है. ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर. लेट्स सी द इफेक्ट. एक्सपोर्ट कॉस्ट राइज. Okay, if the Indian rupee, that is INR, appreciates, foreigners will find Indian goods more expensive because they have to spend more for those. अभी क्या होगा, foreigners को ज़्यादा पैसा खर्च करके goods लेके जाना होगा, उनके लिए क्या हो गया, ये costly हो गया. All right. That means that with the higher price, the number of Indian goods being exported will likely to drop. This eventually leads to a reduction in GDP. Okay, so reduction होता है GDP में, मतलब foreigners के लिए अभी क्या हो जाएगा, imports costly हो जाएगा, जिससे हमारा export down हो जाएगा और उसके वजह से GDP में भी effect हो सकता है. I hope it's clear till now. Now let's see currency devaluation and revaluation. It's same like depreciation and appreciation. Depreciation के जगह आप devaluation बोल सकते हैं, बट इसमें छोटा सा एक डिफरेंस है, और appreciation के जगह आप revaluation बोल सकते हैं. अब डिफरेंस क्या है, मैं जब समझाऊंगी तभी आपको पता चलेगा. ओके, लेट्स सी क्या डिफरेंस है इसमें. Under a fixed exchange rate system, devaluation and revaluation are officially changes in the value of country's currency relative to other currency. थोड़ा confusing लगा होगा, सिंपल वर्ड्स में मैं समझाती हूँ. devaluation का मतलब क्या होता है, when there is a fall in the currency value, करेंसी का वैल्यू जब कम हो जाता है. बट इसमें डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन का जैसा ही है मैम, ये डेप्रिसिएशन में भी वही होता था, डेप्रिसिएशन में भी करेंसी का वैल्यू कम होता है और डीवैल्यूएशन में भी करेंसी का वैल्यू
कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन होता है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, ओके, एंड डीवैल्यूएशन होता है बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट। बस इतना ही डिफरेंस है, ओके। देन See, devaluation is when the price of the currency is officially decreased. यहाँ टर्म यूज किया गया है officially, मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी जब डिक्रीज करता है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, वैल्यू जब डिक्रीज करता है करेंसी का, तो उसे बोला जाता है डिवैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज रीवैल्यूएशन? ये सेम है अप्रिसिएशन के जैसा ही, बट इसमें भी यही डिफरेंस है कि व्हेन द प्राइस ऑफ करेंसी, जब करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है, क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी जो ऑफिशियली इसको इंक्रीज करवाता है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ गवर्नमेंट हैज सेट 10 यूनिट्स ऑफ इट्स करेंसी इक्वल टू 1 रुपी, ओके। टू devalue it might announce, ये अनाउंस भी कर सकता है that from now 20 units of its currency, that is 20 of its currency units will be equal to 1 rupee. जो करेंसी यूनिट्स है वो 20 यूनिट्स इक्वल टू 1 रुपी होगा। दिस वुड मेक इट्स करेंसी हाफ एज एक्सपेंसिव टू इंडियन एंड द इंडियन रुपी ट्वाइस एज एक्सपेंसिव इन द डीवैल्यूइंग कंट्री। दैट मीन्स सिंपली अगर हम देखें, डीवैल्यूएशन का मतलब यही होता है जब ऑफिशियली अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम करेंसी का वैल्यू डिक्रीज होता है या उसको कम कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी अपने रुपी के, अपने करेंसी के वैल्यू को इंक्रीज करवाता है, इसको वैल्यू को इंक्रीज कराता है। सो दैट इज कॉल्ड devaluation and revaluation. Effects of devaluation, cheaper exports. अब जब devalue हो गया है, जब करेंसी का वैल्यू कम कर दिया गया है ऑफिशियली, तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट्स cheaper हो जाएगा, ओके। That means what? Devaluation makes the country's export relatively less expensive for foreigners. तो foreigners के लिए वो less expensive हो जाएगा, ठीक है। Then expensive imports. अब एक्सपेंसिव इम्पोर्ट्स मतलब हमारे लिए इम्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, डिस्करेज होगा इम्पोर्ट्स, ओके। देन राइज इन इन्फ्लेशन. फॉर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, currency depreciation would mean increase in price of imports, thus which leads to inflation. अब देखो, जब करेंसी डेप्रिशिएट होता है या डीवैल्यू होता है, ओके, सो डेप्रिशिएट क्यों होता है? लेट मी रिमाइंड यू अगेन. डेप्रिसिएशन होता है बाय द मार्केट फोर्सेस एंड डीवैल्यूएशन होता है ऑफिशियली बाय सेंट्रल बैंक, ओके। सो क्या होता है, जब डीवैल्यू होगा या डेप्रिसिएशन होगा, उससे इंपोर्ट्स का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, ओके, एंड जिसके वजह से इन्फ्लेशन होने का चांसेस है. इन्फ्लेशन मतलब व्हेन देयर इज अ जनरल प्राइस राइज, ओके. ना लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, डिवेल्युएशन में डैम्पन, और इसको क्या होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कंट्री में, दे फाइंड इट इनसिक्योर, ओके. कंट्री में इनसिक्योर वो मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने का चांसेस है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स का है वो लो हो जाता है, ओके. आई होप इट्स क्लियर. Now let's come to objectives of currency devaluation. Currency devaluation का क्या objectives है, क्या कारण है, क्यों करते हैं ऐसा, ओके. टू एंकरेज कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो होगा. आप जब अपना वैल्यू, करेंसी का वैल्यू कम कर देंगे तो क्या होगा, फॉरेनर्स विल फाइंड इट अट्रैक्टिव और उनके लिए चीपर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैपिटल इनफ्लो होगा, ओके, एंड प्रिवेंट होगा कैपिटल आउटफ्लो. Devaluation is done to improve the balance of payment position due to reduce imports and increase in exports. जो balance of payment deficit है, क्योंकि balance of payment deficit कब होता है, जब imports ज़्यादा होता है और exports कम होता है, ओके. सो अगर डिवेल्युएशन हुआ तो इससे क्या होगा, जो भी बीओपी में डिफ़िकल्टीज है, डेफिसिट है, वो ठीक हो जाएगा. इट इंक्रीजेज द एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री. जब एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ओके. तो उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी गुड, ओके, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस होंगे.
Next, it is also done to combat trade imbalances in the country. वही अगर trade imbalances है country में तो उसको भी ठीक कर सकता है when there is devaluation. Need for devaluation, फिर से वही चीज़, to sustain a fixed exchange rate, a country needs to have significant foreign exchange reserves, often in dollars, and should be willing to spend them so that it can purchase all offers of its currency at the established exchange rate. यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स. डिवैल्यूएशन जब होता है, देखो डिवैल्यूएशन होने से क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा. जब हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा तब क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल हैव अ रिजर्व. हमारे पास इनफ रिजर्व होगा फॉरेन करेंसीज का. तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी जो भी हमें इंपोर्ट करना है नेसेसरी गुड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, वो हम कर सकेंगे. सो यहाँ वही बोला गया है, impacts of devaluation, it makes the domestic currency of the country cheaper compared to other currency. हमारा करेंसी cheaper हो जाता है compared to the other currency. Devaluation makes the country's exports cheaper for domestic consumers as compared to the imports and therefore discourage imports which help to reduce the current account deficit. Now current account deficit help करता है जब there is devaluation, क्योंकि exports cheaper हो जाता है for the domestic consumers as compared to the imports. Imports से exports cheaper हो जाता है. तो इससे क्या होता है, हमारा current account में जो भी deficit है, करंट अकाउंट में जो भी डेफिसिट है, ओके, तो वो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं. ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स में प्राइस राइज होने के वजह से एंड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डिवैल्यूएशन कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड स्लो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. तो डिवैल्यूएशन होने से इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, ओके, एंड इससे क्या, इट कैन स्लो डाउन द growth rate of a economy. Now it is viewed as a sign of economic weakness of the nation which can dampen the confidence of a nation and discourage. वही सेम चीज़, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है जिससे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है इन्वेस्ट करना, तो इससे इन्वेस्टमेंट रुक सकता है और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ओके. Now let's come to the objectives of revaluation. Revaluation क्यों किया जाता है? Revaluation मतलब क्या था? When there is increase in the value of currency. Okay? When the exports are higher than imports, the government could go for currency revaluation. जब एक्सपोर्ट्स हायर हो जाता है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इम्पोर्ट से, गवर्नमेंट रीवैल्यूएशन करता है, ओके, फॉर रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट सरप्लस. करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट हद से ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो करंट अकाउंट सरप्लस भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस होना चाहिए. तो इसके लिए रीवैल्यूएशन किया जाता है, ओके, बाय गवर्नमेंट. इट कैन बी अंडरटेकन टू मैनेज इन्फ्लेशन ऑल्सो, एज रीवैल्यूएशन कैन मेक इम्पोर्ट्स चीपर, क्योंकि इंपोर्ट्स चीपर हो जाएगा, विच कैन इन टर्न रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. इन्फ्लेशन रोकने के लिए रीवैल्यूएशन किया जा सकता है, ओके. इफेक्ट्स ऑफ रीवैल्यूएशन, इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बिकॉज द एक्सपोर्ट विल बिकम लेस कंपिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. इससे क्या होता है, कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ओके. As imports become cheaper, there is overall fall in imports. क्योंकि imports cheaper हो जाता है, overall not fall, overall rise हो जाता है imports में. All right, then it decreases the value of remittances coming from abroad. Remittances का मतलब होता है, सपोज आपका कोई आपका दीदी या फिर आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, आपके भैया हैं, वो अगर बाहर रहते हैं और वो आपको पैसा भेजते हैं महीने भर में, ठीक है, तो दोज आर कॉल्ड रेमिटेंसेस. तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी डिक्रीज आएगा, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू द सक्सेसिव रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. कभी कभी क्या होता है, रीवैल्यूएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बीओपी में, बीओपी के लिए, ओके. जब रीवैल्यूएशन होता है करेंसी का, रीवैल्यूएशन करेंसी का वैल्यू जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो बीओपी में क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ओके, सरप्लस हो सकता है. सो एज इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीजेज. क्योंकि इम्पोर्ट्स अभी बहुत ज़्यादा चीपर बन गए हैं तो इन्फ्लेशन में इंक्रीज होने का फुल चांसेस है. आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर. Now let's come to foreign exchange market.
सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां करेंसीज बॉट एंड सोल्ड होते हैं. ओके, करेंसीज को खरीदा या बेचा, खरीदा या बेचा जाता है. So foreign exchange market is the market in which national currencies are traded for one another. तो एक करेंसी के लिए दूसरा करेंसी जहां ट्रेड होता है, ठीक है, खरीदना या बेचना होता है, उसी को बोला जाता है foreign exchange market. Now types of foreign exchange market. So there are basically two types of foreign exchange market. एक है spot market, दूसरा है forward market. So spot market क्या होता है? Let's see. The market which handles only spot or current transaction of foreign exchanges are termed the spot market. जो current transaction के साथ डील करता है उसी को बोला जाता है spot market. Spot market में क्या होता है? करंट ट्रांजैक्शन के साथ डील होता है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में यहाँ नहीं होता. करंट ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस आर टेकन प्लेस हियर. नाउ फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? द मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है विच डील्स विद द परचेज and sale of foreign exchange which are contracted today but are implemented in future. Suppose आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि हाँ हम खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन वो किया जाता है फ्यूचर में, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है फ्यूचर में, वो करंट ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है फॉरवर्ड मार्केट. जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिसाइड हो जाएगा आज, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन फ्यूचर और इन कमिंग days. Now functions of foreign exchange market, there is transfer function, that means to transfer finance, purchasing power from one nation to another. Such transfers effected through foreign bills or remittances made through telegraph transfer. एक होता है transfer function जिससे purchasing power आप one nation से another nation में transfer कर सकते हैं finance से related. Then credit function होता है to provide credit for the international trade. Trading करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने के लिए जो भी क्रेडिट चाहिए, ठीक है, वो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये फंक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है. जो भी क्रेडिट आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज़रूरत होता है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है. हेजिंग फंक्शन टू मेक प्रोविजन फॉर हेजिंग फैसिलिटीज, दैट इज टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग स्पॉट और फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंजेस. दैट मीन्स आपको अगर फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करना है या करंट ट्रांजैक्शन करना है तो इससे ये एक फंक्शन है जिससे आप ये कर सकते हैं. स्पॉट मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट में अपना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेजिंग फंक्शन. ओके, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट. सो डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट फ्री मार्केट में कैसे डिसाइड होता है, अब हम वो देखेंगे. लेकिन उससे पहले लेट्स सी सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है वो क्यों होता है या कहाँ से होता है, डिमांड क्यों होता है. परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स. अब हमें तो ज़रूरत होगा ना इम्पोर्ट्स का, तो हमें जब इम्पोर्ट करना है बाहर से तो हमें उनके फॉरेन करेंसी में पे करना होगा, जैसे हमें डॉलर में पे करना होगा, तो इसीलिए हमें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज. देन पेमेंट, अगर कोई इंटरनेशनल लोन लिया है हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो पेमेंट भी तो हमें डॉलर में करना होगा. ओके, सो इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. गिफ्ट्स, ग्रांट्स, अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गिफ्ट्स देना है, ग्रांट्स देना है, तब हमें चाहिए. इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है, इन्वेस्ट अगर हम करना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तब हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. और अगर हम बाहर घूमना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपका अगर मन हुआ तो आप बाहर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, ओके, डॉलर चाहिए, तो इसीलिए दीज आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. नाउ लेट्स कम टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आने के चांसेस है. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. सबसे पहला है परचेजेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स बाय द फॉरेनर. ठीक है, अगर बाहर से वो लोग इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, सपोज यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे दे हैव टू पे अस इन डॉलर, तो हमारे पास क्या आ गया, डॉलर आ गया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन एफडीआई होता है, तब हमारे पास आ जाता है फॉरेन रिजर्व. ठीक है, स्पेक्यूलेटिव परचेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
अगर फ्यूचर में उसका प्राइसेस अप डाउन होने का चांसेस है, किसी ने स्पेक्यूलेशन किया है, तो उससे हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज। देन टूरिज्म, रेमिटेंसेस, बाहर से जो भी घूमने आते हैं इंडिया में, जो भी रेमिटेंसेस इंडिया को मिलता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री अब्रॉड। और अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो बाहर के अगर कोई भी रेसिडेंट्स हैं, वो अगर हमारे पास भेज रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। So see, this is determined at a point where demand for and supply of foreign exchanges are equal. जब डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का इक्वल होता है, वहीं पर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। जैसे हमने देखा था ना क्लास 11 में, डिमांड और सप्लाई, जहाँ डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट होता है लाइन, वहाँ क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम होता है। So graphically, intersection of demand and supply curves determines equilibrium exchange rate of foreign currency. At any particular time, the rate of foreign exchanges must be such that at which quantity demanded of foreign currency is equal to the quantity supplied of that currency. मतलब आप जितना करेंसी डिमांड कर रहे हो, उतना अगर सप्लाई भी हो रहा है, so at that point आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओके, सो इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम है, हम देखेंगे। सो द प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस, हमने प्राइस मेजर किया है वर्टिकल एक्सिस में, एंड क्वांटिटी ऑफ द यूएस डॉलर हॉराइजेंटल एक्सिस में। सो हॉराइजेंटल एक्सिस में मेजर किया गया है क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ हमने डॉलर को लिया है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिससे ये दिखाता है कि लेस फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, कम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड किया जाएगा जब इसका रेट इंक्रीज होगा। जैसे प्राइस जब किसी भी चीज़ का इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, हम कम डिमांड करते हैं, हमारा डिमांड कम हो जाता है जब प्राइस इंक्रीज होता है। उसी तरह ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फॉरेन एक्सचेंज का कर्व। क्यों? क्योंकि जब हम कम डिमांड करेंगे जब इसका एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, द रीजन इज दैट राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज द रूपी कॉस्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस इंक्रीज होगा, इसका मतलब हुआ कि हमारा रुपी कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, विच मेक्स देम मोर एक्सपेंसिव। तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा। सो द रिजल्ट इज़ द फॉल इन इम्पोर्ट्स एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो हम कम डिमांड करेंगे, ऑफकोर्स हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा, हम डिमांड कम करेंगे। एंड नेक्स्ट द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग है, क्यों है ये अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज। ओके, बिकॉज सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। होम कंट्रीज गुड्स, हियर इंडियन गुड्स, होम कंट्री यहाँ इंडियन गुड्स लिया है, ये चीपर हो जाएगा फॉरेनर्स के लिए, बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट होगा यहाँ। Okay, so I hope it's clear till now. We can see from the figure, demand curve, this is original demand curve, ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो दिखाता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन दिस प्राइस ऑफ डॉलर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप है, इसका मतलब इसके बीच क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इंक्रीजेज, thus our exports should increase as the exchange rate increases. एक्सपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट्स क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो हमारा रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा और फॉरेनर्स के लिए ये चीपर हो जाएगा। सो इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा। दिस विल ब्रिंग ग्रेटर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उससे जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सप्लाई हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। हैंस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज, विच प्रूव्स द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो जब हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होता है तो हमारा सप्लाई हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इसका मतलब सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो इन द अबव फिगर, दिस फिगर, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। यहाँ ई पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम रेट है, प्राइस है एक्सचेंज रेट का, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ओके,
which implies that at exchange rate at exchange rate of OR exchange rate में quantity demanded या quantity supplied equal है, ठीक है, जो कि है OQ. I hope it's clear till now. Now let's see change जब होता है तो क्या होगा. Suppose exchange rate बन गया $1 is equal to 50 rupees. $1 is equal to 50 rupees बन गया. तो an increase in India's demand for US dollar, जब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे US डॉलर का, supply remaining the same will cause the demand curve DD to shift to D dash D dash. जब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो D dash shift हो जाएगा. Okay, the resulting intersection will be at a higher exchange rate. तो डिमांड जब हम करेंगे डॉलर का, ऑफ कोर्स क्या होगा, वो हायर एक्सचेंज रेट में हो जाएगा. किसी भी चीज़ का जब डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस इंक्रीज होगा ना. सो द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन विल बी एट अ हायर एक्सचेंज रेट, दैट इज एक्सचेंज रेट price of dollar in terms of rupee will rise from OR to OR dash. Say $1 is equal to 52 rupees. Okay. Thus depreciation of currency means a fall in the price of home currency. इसका मतलब जब हमारा डिमांड बढ़ेगा US डॉलर के लिए, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू D dash एंड हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, सप्लाई रिमेनिंग द सेम. डिमांड इंक्रीज जब होगा, हमारा रेट जो US डॉलर का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज फ्रॉम OQ to OQ1. Okay. Now suppose an increase in supply of US dollar will cause supply curve SS shift to S dash. जो SS curve है वो S dash हो जाएगा जब supply increase होगा. And as a result exchange rate will fall from OR to OR2. It indicates that एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा OR से OR2, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब सप्लाई ज़्यादा होता है, ओके, उसका प्राइस भी कम हो जाता है. इसीलिए जब इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट, सो इसका प्राइस कम हो गया. किसी भी चीज़ का जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस कम हो जाता है. सेम इस केस में भी वही है. ओके, so and as a result exchange rate will fall from OR to OR2. It indicates appreciation of Indian currency. इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, एप्रिशिएट हो गया. अभी हमें जैसे पहले बिकॉज कॉस्ट ऑफ US डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी हैज़ नाउ फॉलन. अभी $1 में हमें सिर्फ 48 पे करना है, दैट मीन्स लेस रुपी, कम रुपी पे करना है फॉर द $1. दिस इज राइज इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी. आई होप इट्स क्लियर. आई होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू लाइक द सेशन आई होप यू विल कंटिन्यू टू वॉच आवर YouTube channel and kindly subscribe to our channel for more such videos.